Bismillahirrahmanirrahim. We have done so far till poem number 14, lecture number 1. Now we are moving toward poem number 14 and its second lecture. We have done with the text of the poem and words meaning related to board. It's time to revise a bit of the previous lecture and moving toward the new one. So poem number 14 was a poem by Baba Bulle Shah, which was the translated version of a Punjabi poem, My Neighbor Friend Breathing His Last. You know a lot about the theme and the summary of the poem because we had discussed about the poet, the theme of the poet, about the poem, what's the poem about, what type of poet was Baba Bulle Shah, and what was his themes in his poetry. Then we also read text of the poem with its original version, that was the Punjabi version of the poem. Then we summarized the poem and learned how to summarize a poem and what is the message of the poem. Then we went through the main idea of the poem and difficult words and meaning, then explanation with reference to the context of the initial few lines. These were the things which we have covered in the previous lecture. Now today's lecture starts from line number 6 to 8. I think this is the third stanza of the poem. Line says, on every side decamping talk, ये हमने टेक्स्ट में भी पढ़ लिया था. At every place are shrieks in stock. What should I do, O God, aghast? This line is the repetitive line which is being repeated in every stanza of the poem. So it was once given for explanation in Gujranwala 10. There are some difficult words in this stanza. So before explaining, we should know those difficult words for the ease of explaining. Decamping mean leaving, यानी decamp. Camp का मतलब होता है कहीं रहना. Decamp उठकर चले जाना, वहाँ से हिजरत कर जाना, छोड़ जाना, यानी departing या escaping. जैसे आप दुनिया में इंसान एक कैंप लगाता है, फिर एक दिन उसे decamp करना पड़ता है. ये बेसिकली सिम्बोलिकली आपको डेथ को पैगाम दे रहा है. Then we have the word shrieks. Shrieks mean screams, cries, ये shouts, यानी चीख व पकार या आहो बका, जैसे ये तस्वीर भी आपको ये बताने की कोशिश कर रही है. देन येप्स भी इसका वर्ड है, इसका मीनिंग है, ये भी आप याद कर लें, पोटेंशियल वर्ड है ताकि आपके बुका हो. स्टॉक एक वर्ड है. स्टॉक का मतलब होता है कुछ चीज़ों को स्टोर करना, अबेंडेंस करना, ज़ख़ीरा करना. Collection, stir and abundance are the meaning of the stock. Then pile, behoes meaning. Now जो हमने पहले 3 लाइंस पढ़ी हैं उनका रेफरेंस, जिस तरह हमने शुरू की 3 लाइंस पढ़ी थी उनके रेफरेंस के बिल्कुल अकॉर्डिंग होगा. These lines have been extracted, you have taken from the poem My Neighbor Friend Breathing His Last by Bulle Shah. आप ऐसे रेफरेंस लिखेंगे जैसे पहले पढ़ा था और कंटेक्स्ट बिल्कुल वही है. आप इसको एक दफ़ा मैं फिर पढ़ लेता हूँ, आपको पढ़ा चुका हूँ. The death of our near and dear ones not only makes our life gloomy and desolate but also reminds us of our mortality and helplessness. Nothing is immortal and everlasting but God Almighty, whose love is a real sport in this world and the world hereafter. खुदा के अलावा कोई भी दुनिया में जो है बाकी नहीं रहेगा, सब फानी है. Now moving toward explanation of these lines. आप देखें कि मैंने इसको कुछ उर्दू वर्सेस भी इसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए शामिल किए हैं, बट यू नीड नॉट टू कोड देम इन योर पेपर. एक आध अगर आप लिख सकते हैं तो बेशक लिख लें, बट इतने ज़्यादा ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ सकें. द पोएट डिस्क्राइब्स अ सीन वेयर अ डेड बॉडी लाइज विद मोर्नर्स. मोर्नर कहते हैं मातम करने वाले, रोने वाले. गिविंग वेंट टू देयर पेंट अप फीलिंग्स थ्रू देयर शेडिंग टीयर्स, यानी अपने आंसू बहाकर लोग अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं मरने वाले के लिए. क्राइंग एंड वेपिंग प्रोवाइड कथारसिस. कथारसिस कहते हैं परगेशन ऑफ सोल, रूह को जो है हल्का करता है आपका रोना धोना ऐसे सिचुएशन में. विच लेसन द सप्रेसिंग ग्रीफ एंड सोरो, यानी कहता है कि व्यापार तो यहाँ का
बहुत किया। यहाँ मतलब यहाँ इस दुनिया का, अब वहाँ का भी कुछ सौदा लो, सब साथी पहुँचे मंजिल पर, अब तुम भी अपना रास्ता लो। यानी अगर सब ने इस जहां में जाना है तो हमें भी उस जहान के लिए तैयार होना चाहिए। द पोइट इज हाउवर इन ग्रेट शॉक बिकॉज द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड इज अनबिलीवेबल। श्रीक्स इन स्टॉक जो फ्रेज है, इट इम्प्लाई अनएंडिंग और अनसीजिंग सॉरो, यानी ऐसे दुख जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन हकीकत यही है, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा रहा मैं यहाँ हर सफरी का। यानी ज़ाहिर है यहाँ हर इंसान जो है अपनी ज़िंदगी लुटा कर ही जाता है। द एटमॉस्फेयर इज़ टोटली ग्लूमी एंड डिप्रेसिंग वेयर द फ्यूनरल लाइव्स एंड द पोइट फील्स हेल्पलेस एंड फ्रेंडलेस ऑन द डेथ। When it comes to critical appreciation, we see that decamping talk is the usual mournful talk that is heard where a dead body lies। यानी अमूमन मैयतों पर जो है decamping talk होती है, आहो बका होती है। Decamping is the most appropriate word to connote man's temporary stay in this world and then his final exit from the panorama of life। The word used by A.R. Luther, A.R. Luther मैंने आपको बताया था who was the translator of this poem। The word used by A.R. Luther are easy but full of pathos। The rhyme scheme in these lines is A A B B, यानी this is the rhyme scheme। First to second line rhyme कर रही हैं, third line उनसे rhyme नहीं कर रही। और क्रिटिकल अप्रिसिएशन अगर आप याद कर लें इट्स वेल एंड गुड, नहीं भी होती तो आप एक्सप्लेनेशन तक इक्तफा कर लें, दैट वुड बी एनफ फॉर यू। लाइन नंबर 9 to 11 से फ्लेयर अप फ्लेम इन द हार्ट टू हाइट फॉर विजिबल इज नॉट चार्मिंग साइट व्हाट शुड आई डू ओ गॉड अगॉस्ट। यानी ये लाहौर 10 में आया था और इसका पंजाबी वर्जन ये था, डांट कलेजे बलबल उठे बढ़ के बरूँ नार रब्बा हुन की करिए। ये इसका ओरिजिनल वर्जन है जो हमने टेक्स्ट पढ़ते हुए भी फ्लेयर अप का मतलब जैसे देखिए आपके शोले बुलंद हो रहे हैं, फ्लेयर अप का मतलब है इरप्ट, एक्सप्लोड, एक्सप्लोर यानी अराउज, यानी शोलों का बुलंद होना। विजिबल जो चीज़ नज़र आए उसे विजिबल कहते हैं, नोटिसेबल, ऑब्जर्वेबल, एविडेंट एंड डिटेक्टेबल। द चार्मिंग, चार्मिंग खूबसूरत को कहते हैं, डिलाइटफुल, एमिएबल, अट्रैक्टिव, अपीलिंग, ब्यूटीफुल, बहुत सारे इसके मीनिंग। साइट मंजर को कहते हैं, वियन, व्यू, स्पेक्टिकल, सीन, पैनोरामा, ठीक है जी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते। अब इस स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। इसके साथ भी आपने रेफरेंस और कंटेक्स्ट वही यूटिलाइज करना है जो प्रीवियस स्टैंजास के साथ हम करते आए हैं। एंड explanation says the fire of grief is burning in the heart of the poet। He does not know how to extinguish the flame of sorrow except by calling to his creator। कहता है खुदा के सिवा इस दुख का जो है वो मैं सदमे का जो शिकवा है किससे करूँ। Seeing his mentor was just like a pilgrimage to Bulle Shah, and now the person who connected to the poet with Allah Almighty is going to be invisible forever। उसके लिए वो जो मुर्शिद था या उसका दोस्त था वो अब हमेशा हमेशा के लिए invisible होने वाला था। Fire of grief can only be quenched through weeping and crying, but the poet is simply speechless and wide-eyed at this huge unexpected loss। यानी वो हक्का बक्का और आंखें खुली की खुली हैं कि ये हो क्या गया है। जैसे ये उर्दू का कुछ वर्ड्स है अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब दिल पर चोट लगे गहरी और आंसू पीना मुश्किल हो, आसान लगे बस मर जाना, गम सह कर जीना मुश्किल हो, तब एक अनोखे जादू से होती है बारिश लफ्ज़ों की और हम शायर बन जाते हैं। ये इससे थोड़ा सा रिलेट कर रहा था, दैट्स व्हाई इट हैज़ बीन मेंशन। Critical appreciation, as I told you, if you feel equal to it, you should write it, you can skip it। The poet has beautifully compared the flames of fire to the intensity of grief। Economy of the word is the beauty of the poetry। Pithiness has great effect on the listener and the readers। The rhyme scheme in this line is A A B। तो यहाँ पर आप ग्रीफ के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। यहाँ पर टाइपो है, ग्रीफ के बाद फुल स्टॉप नहीं लग सका, बट यू शुड यूज फुल स्टॉप आफ्टर ग्रीफ। आगे चलते हैं जी। लाइन नंबर 12 to 14 क्या कहती हैं। विदाउट हिज लव बुल्ला इन लॉस, यानी हिज से मुराद यहाँ गॉड है, अल्लाह है। कैन हार्डली ड्वेल हेयर और अक्रॉस, हेयर मीन इस दुनिया में, अक्रॉस मीन हेयर आफ्टर। व्हाट शुड आई डू ओ गॉड अगॉस्ट, खुदाया मैं क्या करूँ। साहिवाल 16 में ये आया था, वो उसका ओरिजिनल वर्जन कहता है, बुल्ला शो प्यारे बाजू रे उर्रार नपाद रब्बा हुन की गई। ड्वेल का मतलब होता है रहना, रिजाइड, लिव,
स्टे या सेटल। जैसे आपने पीछे डी कैंप पढ़ा था तो ये उसका ऑपोजिट है, ड्वेल रहना। डी कैंप का मतलब होता है कैंप उखाड़ कर चले जाना। और हार्डली कहते हैं मुश्किल से कोई काम करना, बेयरली, स्कॉर्सली या रेयरली कोई काम होता है, डिफ़िकल्ट के जी। एक्सप्लेनेशन कहती है जी द लास्ट टेंजा, यानी ये पोइम का लास्ट टेंजा है या लास्ट लाइन्स। अगर आप ये लास्ट लाइन ये नहीं भी लिखेंगे, अगर आपको ये आता है, ज़ाहिर है हम पोइम के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको पेपर में आता है तो आप लास्ट टेंजा के बजाय लिखेंगे दिस टेंजा रिमाइंड्स अस ऑफ सूरह ऑफ द कुरान, सूरह अल-हसर, which clearly distinguishes the right path from the wrong path. Man is no doubt is in loss except for those who have faith in Almighty Allah and do noble deeds. यानी वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ये वहाँ पर हमारा जो है ईमान लेकर जाती है ये पॉइंट कि अल्लाह की जो है रज़ा और खुशनुदी के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। बुल्ले शाह लाइक अदर मिस्टिक पोइट वाज क्वाइट वेल वर्स्ड इन कुरानिक टीचिंग। क्योंकि बुल्ले शाह हैं वो सूफी पोइट थे, उन्हें कुरानी टीचिंग में की काफ़ी हद तक अबूर हासिल था। All mystic poets preach love and give the same divine message of Allah. The poet wants to say that we need God's care and support, not only in this world but also in the world hereafter. इसलिए हम कहते हैं फिर दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनत, इस दुनिया में भी खैर भलाई और आखिरत में भी खैर भलाई। It is only God who blesses us with gifts and snatches them from us just to see if we remember Him in comfort and distress। यानी खुदा दुख भी देता है और सुख भी देता है, ये आजमाने के लिए कि हम उस पर यकीन रखते हैं या नहीं रखते हैं। क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगी। द पोएट हैज़ ब्यूटिफुली कंपेयर्ड द फ्लेम ऑफ फायर टू द इंटेंसिटी ऑफ ग्रीफ। यहाँ पर दोबारा आपने फुल स्टॉप लगाना है। इकॉनमी ऑफ वर्ड इज द ब्यूटी ऑफ द पोइट्री। पिथीनेस हैज़ ग्रेट इफेक्ट। पिथीनेस का मतलब होता है यूजिंग लेस वर्ड, शॉर्टकट यूज़ करना। हैज़ ग्रेटर इफेक्ट ऑन द लिसनर्स एंड द रीडर्स। द राइम स्कीम इन दिस लाइन इज ए बी। अगर आप ये लिखेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं लिखेंगे तब भी ओके। नाउ अब इम्तहान के पॉइंट ऑफ व्यू से सिनोनिम बेस्ड एमसीक्यूज हैं वो हमने देखा। ऑन एवरी साइड डी कैंपिंग टॉक, डी कैंपिंग पेज 16 में आया। आपके पास ऑप्शंस ये थे बैटल, लिविंग, फाइटिंग, मैच। आप यहाँ पर रोक कर भी आप गेस कर सकते हैं मीनिंग, या आप खुद से फ़ौरन गेस कर लें माइंड में इसका आंसर। फिर आगे देखें इसके बाद में ये ऑप्शन आए डिपार्टिंग, डिस्ट्रक्शन, फियर एंड डिस्टर्बिंग। जब आपको ऑप्शंस दिखाई जा रही होती हैं तो आप गेस कर लिया करें मीनिंग। यहाँ पर ये इसके 4 ऑप्शंस थे और F13 इन फासलाबाद 13 और सरगोदा 15 में इसके ऑप्शंस ये वाले थे, चार्मिंग, लाफिंग, डिपार्टिंग एंड कंफ्यूजिंग। सो आंसर इसका जो है देखने से पहले हम लाहौर 10 के ऑप्शंस को भी देख सकते हैं। राइटिंग, क्राइंग, इंजॉइंग या गोइंग अवे। द आंसर्स आर हेयर, लिविंग, डिपार्टिंग, गोइंग अवे। ठीक हो गया जी। ये वर्ड था डी कैंपिंग और इसके ये जो है डिफरेंट मीनिंग थे। लिविंग है, डिपार्टिंग है, फिर डिपार्टिंग है। फ्लेयर अप, फ्लेम इन द हार्ट टू द हाइट। फ्लेयर अप अंडरलाइन वर्ड है, इसका मतलब क्या हो सकता है? ब्रेकअप, बैकअप, फैन अप या अराउज। तो आप गेस करें क्या मीनिंग होगा। फ्लेयर अप, फ्लेम, दिल में शोले उठे, बुलंद हुए, क्या ऑप्शन हो सकती है? कैन हार्डली ड्वेल हियर आर अक्रॉस। ड्वेल का मतलब भी हम पढ़ चुके हैं। आपके पास 2 मुख्तलिफ तरह की ऑप्शन हैं, एंकर, लाइव, डिपार्ट, सस्टेन, सिंग, इंजॉय, स्लीप या लिव। तो क्या ऑप्शन है जी? आप गेस करें। हेयर इज़ द आंसर, अराउज, लिव और लिव। नंबर 4 जो है एट एवरी प्लेस श्रीक्स इन स्टॉक। श्रीक आहो बका को कहते हैं, चीखो पकार। पहले लिखा हुआ है श्रीक्स, श्रेल्स, केयर्स एंड ग्रिल्स। तो ये आंसर होगा श्रिल्स। श्रिल्स भी आहो बका को कहते हैं, क्राइज भी हो सकता है इसका। देन एट एवरी प्लेस आर श्रीक्स इन स्टॉक। स्टॉक वर्ड है, स्टॉक का आपको पता है किस चीज़ को स्टोर करना। तो आपके पास आंसर क्या हो सकता है? फिर भी गेस कर लें बिफोर गोइंग फॉर द करेक्ट आंसर। व्हाट शुड आई डू? ओ गॉड, एगॉस्ट। एगॉस्ट का मतलब है नेचुरल, गोस्ट, शुक्ड आर शॉक्ड। तो ऑब्वियसली इसका आंसर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, शॉक्ड। श्रीक्स मीन श्रेल्स, स्टॉक मीन स्टोर एंड अगॉस्ट मीन शॉक्ड। ये कुछ इसमें सिनोनिम बेस्ड एमसीक्यूज बनते थे, डिस्कस किए हैं। आगे जो क्वेश्चन का वो देखते हैं। व्हेन डज अ पर्सन रिमेंबर गॉड। इंसान को खुदा कब याद आता है, या कब इंसान खुदा को याद करता है? ये इस क्वेश्चन की जो है फ्रीक्वेंसी है। साहिवाल, डीजी खान 14, मुल्तान 11, रावलपिंडी 11 और 13, गुजरांवाला 14, गुजरांवाला 8 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर इज लाइक दिस, अ पर्सन रिमेंबर्स गॉड व्हेन ही फील्स हेल्पलेस एंड फ्रेंडलेस।
इंसान हमेशा खुदा को मुसीबत में याद करता है. A person remembers God when he finds himself without God's love or when he suffers a great loss. अमूमन लोग मुसीबत में खुदा को याद करते हैं, लेकिन जो मुत्तकी लोग होते हैं, परहेजगार लोग होते हैं, वो हमेशा खुदा को याद रखते हैं, बल्कि खुदा को भूलते ही कभी नहीं. What is the effect of the death scene? Death scene का इफेक्ट क्या है? मुल्तान 1619 एंड लाहौर 9 में ये क्वेश्चन आया है. द डेथ सीन मेक्स द होल सराउंडिंग मॉर्नफुल एंड वोफुल. ज़ाहिर है उससे सारा मंजर एक मातम का मंजर पेश करा है. द पोर्ट सेज दैट हिज फ्रेंड हैज़ डाइड एंड ऑन एवरी साइड देयर इज टॉक ऑफ डिपार्चर. द सॉरो kindles an unquenchable fire in the poet's heart and he prays to his creator for his help and support. वो खुद तो दुआ करता है मदद की. Why does a person feel helpless on the death of a friend? क्यों हेल्पलेस करता है? ऑब्वियसली वो कुछ कर नहीं पाता. A friend is our love and strength and his death means an irreparable loss which we cannot bear. Our helplessness on a friend's death is natural and it makes us resort to God for his help. Man should be humble slave to his Lord, otherwise there is no care or protection if he does not surrender to the will of God. Next question is, without whose loss is बुल्ला in loss? Without whose love, किसकी मोहब्बत के बगैर बुल्ला नुकसान में है? तो ऑब्वियसली खुदा की मोहब्बत के बगैर. ये क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी है. आंसर इज, बुल्ला सेज दैट विदाउट गॉड्स लव ही इज इन लॉस. खुदा की मोहब्बत के बाद. He says that God loves enables us to endure pain and suffering of life. God's love gives us strength to bear this unbearable bereavement. यानी अल्लाह की मोहब्बत जो हमें हर तकलीफ, दम, दुख, गम बर्दाश्त. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंक्लूजन डज द पोएट ड्रॉ इन द पोएम माय फ्रेंड नेबर फ्रेंड ब्रीदिंग हिज लास्ट. यानी इस पोएम का कंक्लूजन क्या है? एक बार ये क्वेश्चन आया है. द पोएट कंक्लूड्स दैट विदाउट गॉड्स लव ही कैन हार्डली लिव इन दिस वर्ल्ड और इन द वर्ल्ड टू कम. यानी कंक्लूजन यही है कि खुदा की मोहब्बत के बगैर ना ये दुनिया न वो दुनिया. He says that only God's help can save us from the pangs of the soul and give us strength to bear great losses in life. Paraphrase the poem in your own words. इसको यूँ भी कह सकते हैं, write a summary of the poem. ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन अगेन हम इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं. The poem expresses sadness over the approaching death of a beloved friend. The death of our dear ones not only makes us our life colorless and dark, but also reminds us of our mortality and helplessness. Winning God's love is a real success both in this world and in the hereafter. That was all about poem number 14. Happy learning. Thank you very much.